Previous video we have seen about the function definition and function calling. ठीक है, these two things we have seen. Now we'll go through the arguments. ये आपको पता है कि जो arguments, the values that you pass in the function definition or in the function call, they are known as arguments. ठीक है, these are known as arguments, right? You know this. So what are arguments? We will see this. Okay, now see, arguments are the values passed. Arguments are the values passed. It can be of two types. One is actual argument and the other is formal argument. These are two types of arguments that are passed while we are using methods, we are calling methods, or we are creating methods. There are two types of arguments or parameters: actual arguments or parameters, formal arguments or parameter. Now you should know the basic, what is actual and what is formal. Now actual arguments are the arguments that are written during the function कॉल. जो फंक्शन कॉल के समय पर लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स. ये दीज टू आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. और जो यहाँ पर लिखे गए हैं दीज आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और parameters. So this is the basic thing. Now you know what is actual argument and formal argument. Actual arguments are the arguments that are written at the time of function calling without mentioning their data type, and formal arguments or parameters are the parameters written during the function prototype with the data type. Clear? So these are formal arguments or parameters and these are actual. इसमें समझने वाली बात इतनी ही है. फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? जो कि आपके फंक्शन डेफिनेशन में लिखे होते हैं. और एक्चुअल कौन से होते हैं? जो फंक्शन कॉल में लिखे होते हैं. ठीक, दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स. आई होप सो दिस इज़ क्लियर. ओके, now we have also studied function calling. हमने पढ़ा था function calling. Function calling is also called as function invoking, or you can say method calling or method invoking. ठीक है, these are the names interchangeably used for the same concept. So there are also of two type. First is कॉल बाय वैल्यू एंड द सेकेंड इज़ कॉल बाय रेफरेंस. अब इसको कॉल बाय बोलो या पास बाय बोलो, एक ही चीज़ है. कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू. इन योर सिलेबस यू विल कवर दिस टॉपिक. ये वाला जो टॉपिक है दिस विल बी कवर्ड. इस पे से क्वेश्चंस भी आते हैं एंड थ्योरी प्लस प्रोग्राम both comes from this topic. But from call by reference only theory is there, that what is call by reference or एक example maximum, only this much. But we will study both the concept, what is exactly call by value and what is exactly call by reference. I'll give you one example of both and we'll be doing the programs based on call by वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू का हम यूज़ करेंगे. इसके ऊपर देयर विल बी नो प्रोग्राम्स ऑन दिस टाइप ऑफ कॉल बाय रेफरेंस. इज दिस क्लियर? सो नाउ इन द नेक्स्ट slide we will study what is call by value and then we'll study what is call by reference. Clear? Okay, so the first type of function calling that we will study is function call by value, or you can say pass by value. फंक्शन कॉल बाय वैल्यू बोलो या पास बाय वैल्यू एक ही चीज़ है. फंक्शन कॉल बोलो या मेथड इन्वोकिंग बोलो, वो भी एक ही चीज़ है. सो कॉल बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू, और कॉल बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस. सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी कॉल बाय वैल्यू. तो इसमें क्या होता है? इट पासिस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कौन से थे? जो कॉल के टाइम पे लिखे थे. फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कौन से थे? जो फंक्शन डेफिनेशन के समय पर लिखे थे.
एक्चुअल से C से कॉल याद रखना और F से F फंक्शन डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कौन से थे, जो कॉल के समय पर लिखे गए थे, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कौन से थे, फंक्शन डेफिनेशन के समय पर लिखे गए थे। तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कहाँ पास होती है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, और वैल्यू को कॉपी कर लिया जाता है। वैल्यू क्या कर दी जाती है, कॉपी कर ली जाती है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर आपके कुछ लिखा रहता है ब्लैक बोर्ड पर, और आप उसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे मैम कुछ लिखती हैं, यू कॉपी इट इन द नोटबुक। तो इसमें क्या होता है, जो चेंजेस, अगर मान लो मैम ने लिखवाया आपको, मैंने आपको कॉपी पे कुछ लिखवाया ब्लैक बोर्ड से देख के, और बाद में आपने अपने रेफरेंस के लिए या अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस किए, सपोजिंगली आपने ब्लू ब्लैक पेन यूज़ किया, ठीक है, किसी ने हाइलाइटर यूज़ किया, तो वो सारी चीज़ें विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो क्या जो चीज़ आप अपनी नोटबुक में करोगे वो हमारे बोर्ड पर भी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, इसीलिए तो जो चेंजेस मेड हैं देयर विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में उनकी वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इज दिस क्लियर? पास क्या करता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को पास कर देता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है, जो फंक्शन कॉल के समय लिखे जाते हैं। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, जो फंक्शन डेफिनेशन के समय लिखे जाते हैं। और पास जब करता है तो क्या पास करता है, वैल्यू पास करता है, जो कि सिर्फ कॉपी होती है। तो जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो तो जहाँ से आपने कॉपी किया वहाँ पे थोड़ी ना वो चेंजेस हो जाते हैं, वहाँ पे वो चेंजेस नहीं होते। तो अगर आपने कोई भी चेंजेस आपने फॉर्मल में किया तो वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं होगा। अब एक लास्ट चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि जो आप इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप का होना चाहिए। आपको याद है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन से होते थे, जो जावा ने प्रोवाइड किए हैं, लाइक आईएनटी, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव, जो कि एक तरीके से यूज़र डिफाइंड भी होते हैं, जैसे एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। दीज आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो फंक्शन कॉल बाय वैल्यू जब होती है, तो जो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं दे आर प्रिमिटिव डेटा टाइप ओनली। सो इफ इन एग्जाम दिस क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, कैन यू एक्सप्लेन द फीचर्स, इफ इट कम्स, सो यू विल बेसिकली इन्हीं 4 पॉइंट्स को अगर आपने प्रॉपरली पैराग्राफ में लिख दिया, देन you have completely defined what is call by value. So first thing, that it passes the actual argument to formal argument. Second thing, only the value is copied. First thing is this. Second thing, only the value is copied. Third, changes made is not reflected. And last is only primitive data type is passed. So these are the 4 डिस्क्रिप्शन अबाउट कॉल बाय वैल्यू। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज़ वन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है। देखो ये फंक्शन का नाम है वॉइड प्रोसेस, ठीक है, और ये INTM। तो जो यहाँ लिखा हुआ है वो कौन सा पैरामीटर है, वो कौन सा टाइप का आर्ग्यूमेंट है, ये है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक। अब उसमें कुछ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, m की वैल्यू जो आई है उसको 20 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दे रहे हैं, ओके। फिर PSVM में गए, यहाँ एक और वेरिएबल है Z30। फिर हमने ये proc_p बनाया। proc_p क्यों बनाया, क्योंकि हमको इस प्रोसेस को, इस मेथड को यूज़ करना है, तो मेथड यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। और फिर हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, अगर तुम्हें दिख रहा हो ये है फंक्शन कॉल। यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट पास किया है ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। इतना क्लियर, दिस इज़ एक्चुअल, दिस इज़ फॉर्मल, ठीक। अब क्या होगा, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा। मेन पर आए, z की वैल्यू क्या है 30, ओके। प्रोसेस को कॉल किया p.process30। तो ये जो 30 था ये कहाँ चला गया, ये चला गया यहाँ पर चला गया। और ये जब गया तो क्या हुआ, सिर्फ कॉपी गया, क्या गया, कॉपी, ओनली द कॉपी हैज़ बीन सेंट। तो वो 30 की वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो गई m में कॉपी हो गई। और m इज़ इक्वल्स टू 30 × 20 कितना होता है, तो m हो जाएगा 30
इंटू 20 दैट इज़ 600 और फिर वैल्यू ऑफ m जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी दैट इज़ 600। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ आ जाएगा, यहाँ वापस आया, यहाँ जब वापस आया उसने लाइन पढ़ी, लिखा है SOPLN वैल्यू ऑफ z। तो वैल्यू ऑफ z क्या है, वैल्यू ऑफ z क्या है 30, क्यों बिकॉज दिस इज़ पास बाय वैल्यू, हमने सिर्फ कॉपी भेजी थी तो हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी एज इट इज़ है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी z की 30। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें इस प्रोग्राम का तो ये लिख कर आएगा वैल्यू ऑफ m इज़ 600 और फिर लिखेगा वैल्यू ऑफ z इज़ 30। डू यू गॉट दिस पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया कि कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा है, सिर्फ उसकी वैल्यू कॉपी हो जा रही है नए वाले आर्ग्यूमेंट में, और क्योंकि वैल्यू कॉपी हो रही है इसीलिए कोई भी चेंजेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। इज दिस क्लियर? तो ये है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और प्रोग्राम्स दैट वी विल बी डूइंग उस सब में यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे बिकॉज इट क्लास 10th ओनली दिस इज़ इन योर सिलेबस। कॉल बाय रेफरेंस का सिर्फ थ्योरी है। क्लियर? ओके। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन कॉल इज़ फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। अब रेफरेंस में क्या होता है, देखो इसमें भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रेफरेंस ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इज़ कॉपीड टू द रेफरेंस ऑफ द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। सेकेंड थिंग, चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड। अगर आपने कोई चेंज किया तो वो चेंज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी दिखेगा। और यहाँ पे जो डेटा टाइप पास होता है वहाँ पे कौन सा होता है, प्रिमिटिव। तो यहाँ पे रेफरेंस या आप इसको कह सकते हो नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप हम आर्ग्यूमेंट्स में भेजते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स, एरेज, ये सब पास होते हैं। समझ में आया? अब का बेसिकली मतलब ये होता है कि रेफरेंस मीन्स एड्रेस। तो यहाँ पर कॉपी नहीं दे रहे, यहाँ पर हम उसकी वैल्यू की कॉपी नहीं बना रहे, हम वो पूरा एड्रेस पास कर दे रहे। तो अगर आपने कोई भी चेंज किया तो वो चेंज कहाँ और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज़ द मेन सिनेरियो ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। इसको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना है, मे बी इन एग्जाम इन डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन कैन बी आस्क्ड, सो यू कैन राइट ऑल दीज 3 points written over here and then we will understand one example। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें समझने वाली हैं कि रेफरेंस पास होता है, दूसरी चीज़ चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और तीसरी चीज़ किस तरह का डेटा टाइप पास किया जाता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक एरेज और ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो अब हम एग्जांपल देखते हैं। नाउ इफ़ यू कैन सी इन द एग्जांपल, एक हमने फंक्शन बनाया है प्रोसेस नाम का, और इसके अंदर देखो ये एक prog t करके है। prog क्या होता है, prog तो इस क्लास का नाम है, तो ये t क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप पास हुआ, और ये आर्ग्यूमेंट है कौन सा, ये आर्ग्यूमेंट है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। इतना तो क्लियर है। फिर उसमें हमने डेटा को चेंज किया, t.z, हम जो भी कोई वेरिएबल को यूज़ करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट तो डॉट वेरिएबल का यूज़ करते हैं, तो t.z इज इक्वल्स टू t.z बाई 10। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के हमने एक वेरिएबल है z जिसको 30 इनिशियलाइज़ कर दिया। इस z की वैल्यू प्रिंट करी। जब वैल्यू ऑफ z बिफोर कॉल प्रिंट करोगे तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा। फिर आपने ये किया क्या, फंक्शन कॉल। आपने फंक्शन कॉल किया, जैसे ही आपने किया ये वैल्यू गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस जाता है तो यहाँ पूरा 30 चला गया, 30 गया, और 30 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, 3। 30 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, 3। तो ये जो 3 है ये कहाँ स्टोर हो गया, अब z में स्टोर हो गया। और आप वापस आए, इस लाइन के बाद आप यहाँ वापस आए। जब आप यहाँ वापस आए और आपने प्रिंट किया SOPLN वैल्यू ऑफ z आफ्टर कॉल, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, 3। तो जो चेंजेस आपने किए थे वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट आपके पास इस तरह से कुछ आएगा, वैल्यू ऑफ z बिफोर कॉल
कितनी है 30 एंड वैल्यू ऑफ z आफ्टर कॉल कितनी है 3. So this is one example of function call by reference. In this type of questions the program will not come, no practical will come, just you should know the theory, and the main point is the difference between call by value and call by reference. So जो 3 points और 4 points मैंने लिखे हैं एक तरीके से वो difference के points भी हैं. So I hope so this is clear. Okay, so with this, in this video we have covered actual arguments and formal arguments. What are they? What is the difference between them? And then we have studied two types of function call. First is call by value and the second is call by reference. Call by value is completely covered in your syllabus, theory, practical, everything, but call by reference only the theory part, no practical. Clear? Okay, so please go through this video. I think this is an easy topic, you must be understanding it, and please solve the questions given in your workbook related to this call by value and call by value and function call, whatever the questions are there in the workbook. Okay.